डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। तो इसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ हमने लिया है ए बी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और ये स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें से हमने क्या किया है, करंट पास किया है। तो इसके सराउंडिंग में क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है। तो यहाँ से जो करंट जाने वाला है वो स्टेडी करंट है। तो हाँ, हमारा राइट हैंड जो है, राइट हैंड का जो थंब दिखाता है, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड आवर कर्व, जो हमारे कर्व फिंगर है, जो हमने कर्व किए हैं, वो फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में कैसे होंगी, इनसाइड द पेपर, एंड इस साइड क्या हो जाएंगी, आउटसाइड द पेपर। तो ये हमारा बायोट-सावर्त लॉ का फॉर्मूला है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर स्मॉल एलिमेंट है, वायर का हमने स्मॉल पार्ट लिया है डीएल, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में जो मिलेंगी, उसका फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर है, और वायर से, स्ट्रेट वायर से ये जो डिस्टेंस है ई एक्स है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो यल है, और स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है डी एल है। तो यहाँ देखो, यहाँ साइन पाई माइनस थीटा, सो पाई साइन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू द फ्रंट साइड दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आर। सो साइन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर, बट साइन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। So this sin theta is equal to, we can write x divided by r. So we can write r is equal to x divided by sin theta, but we know that 1 upon sin theta is equal to cos theta. So this equation we can write r is equal to r is equal to x cosec theta. So 1 upon sin theta that is equal to 1 upon cosec theta. So here we will get r is equal to x cosec theta. Here is the r square, that's why we will take the r square is equal to x square cosec square theta. So this is our equation second. Similarly, suppose we have take the cot pi minus theta. So cot pi minus theta that is equal to adjacent side L divided by front side x. So that is equal to L divided by x. So cot pi minus theta that is equal to minus cot theta. So cot pi minus theta that is equal to cot theta. So here we can write minus cot theta is equal to L by x. So L is equal to, we can write L is equal to minus x cot theta, x cot theta. So here we will take the differentiation. So dl is equal to this cot theta. So cot theta is equal to minus cosec square theta. So here is the minus sign, here is the minus sign, so minus minus plus. So x cosec square theta into d theta. So this is our equation 3. So this equation second and this equation third we have put in here. So here is the dl and here is the r square. So equation 2 and 3 putting in equation 1, we get dB is equal to mu 0 I divided by 4 pi x cosec square theta into d theta into sin theta, as it is divided by r square that is equal to x square cosec square theta. So here 1x get cancel, cosec square theta get cancel. So here is dB is equal to mu 0 I divided by 4 pi sin theta into d theta divided by x. So this is our equation 4. So this equation give the magnetic field produced by the small element. So ये जो small element है, उस वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है वो है हमारे डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई साइन थीटा डी थीटा इंटू डिवाइडेड बाई एक्स। अगर इस होल वायर से हमको मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हुई है वो अगर हमको कैलकुलेट करनी की है, तो यहाँ हमको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ देखो, सो total magnetic field produced by the whole wire AB wire is the B is equal to integration A to B, that is the dB. So dB, already we know that the dB is equal to, that is mu 0 I divided by 4 pi integration x is also constant, so mu 0 I divided by 4 pi x in integration a to b sin theta into d theta. So यहाँ जो एक की तरफ का जो एंगल है वो थीटा 1 है, और बी की तरफ का जो एंगल है वो थीटा 2 है। तो यहाँ हमको मिलता है म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स थीटा 1 to theta 2 integration, so sin theta into d theta. So mu 0 I divided by 4 pi x, but we know that the integration of sin theta that is equal to minus cos theta. So here integration is theta 1 to theta 2, so this we can write this theta 1 to theta 2. So mu 0 I divided by 4 pi x, so this we can write minus cos
थीटा 2 माइनस, here is the minus sign, or minus cos theta 1. So this minus minus plus, so this minus minus plus, so here is the minus sign, so we can interchange this. So this we can write b is equal to mu 0 I divided by 4 pi x cos theta 1 minus cos theta 2. So this is the expression of the magnetic field produced at a point P due to the whole wire. So यहाँ जो magnetic field produce हुई है ये produce की है this whole wire से. So ये whole wire से यहाँ जो magnetic field produce की है वो हमारी उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारा ये है। अब देखो, अगर हमने इफ़ वी टुक द इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, अगर हमने इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लेने के वजह से क्या हो जाएगा कि अगर हमने लिया है इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, सो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लेने के बाद क्या हो जाएगा, दिस पी पॉइंट इज वेरी क्लोज एज कंपेयर टू द दिस ए बी डिस्टेंस. So here what will happen, this theta 1 become as a 0 and theta 2 become as a 180 degree. So theta 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और theta 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लिया है तो एक एंड से बी के एंड से अगर देखेंगे तो हमको पी जो पॉइंट है विच लुक वेरी क्लोज टू और दैट एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 180 डिग्री, और अगर हम एक के एंड से देखेंगे इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर से तो ये थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इस तरह अगर क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ हमको क्या पुट करने का है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट वी नो दैट द cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 180 is equal to minus 1. So here is already minus sign. So minus minus plus. So this mu 0 I divided by 4 pi x. This is 1 plus 1. So this is the b is equal to mu 0 I divided by 4 pi x. This is the 2. So this 2 divided by 4. So that is become mu 0 I divided by 2 pi x. So this is the expression which give the magnetic field of the infinitely long wire. So ये जो expression है, इस एक्सप्रेशन से अगर हमने इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लिया है तो उसके अराउंड एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इससे इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. अगर हमने शॉर्ट वायर लिया है, शॉर्ट स्ट्रेट वायर ए बी, तो उसको हमको ये एक्सप्रेशन यूज़ करने का है. अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग लिया है तो उसके लिए हमको ए एक्सप्रेशन यूज़ करने का है. थैंक यू.